عائشہ گل علی کی بہن کو ہدف نہ بنائے، چیئرمین تحریک انصاف نے پارٹی کارکنان کو واضح ہدایت کر دی۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ نواز لیگ نااہل کرانے کی کوششوں کی نامعامی دیکھ کر کردار کشی پر اتر آئے ہیں۔ نواز لیگ خیبر پختونخوا حکومت گرانے کے لیے لوگوں کو خریدنے لگی ہے۔ عمران خان نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ عائشہ گل علی کی بہن کو ہدف نہ بنایا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے پارٹی کارکنان کو واضح ہدایت کر دی ہے۔ نواز لیگ خیبر پختونخوا حکومت گرانے کے لیے اب لوگوں کو خریدنے لگی ہے۔ اب کوئی چھانگا مانگا نہیں لگے گا، خود کو بیچنے والوں کو بے نقاب ہونے دیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ نواز لیگ نااہل کرانے کی کوششوں کی ناکامی دیکھ کر کردار کشی پر اتر آئی ہے۔ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ کے دلائل دیتے ہوئے کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو کیس میں 11 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ ہر جماعت آڈٹ کرانے کی پابند ہے۔ تحریک انصاف کو 2013 میں 40.5 کروڑ سے زائد عطیات ملے، ان کے اثاثوں کے ذرائع کی چھان بین ہونی چاہیے۔ شہباز احمد نمائندہ نیوز مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی شہباز۔ بالکل، تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت اس وقت سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ چیف جسٹس سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو اکرم شیخ جو حنیف عباسی کے وکیل ہیں، انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ بے نظیر بھٹو کیس میں 11 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ سیاسی جماعت آڈٹ کرانے کی پابند ہے۔ تحریک انصاف کا اصل ذریعہ عطیہ ہے، ممبرشپ 19,000 روپے ہے۔ اکرم شیخ نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ تحریک انصاف سے 2013 میں 40.5 کروڑ روپے زائد عطیات ملے۔ تحریک انصاف کے اثاثوں کے ذرائع کی چھان بین ہونی چاہیے۔ اکرم شیخ کے اپنے دلائل میں کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف معقول پارٹی اور لوگ والہانہ انداز سے فنڈنگ کرتے ہوں۔ آخر میں یہ ہوگا کہ آپ تحریک انصاف کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، جس پر جسٹس فیصل عرب نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیا وہ اکاؤنٹ کی تفصیلات مرتب کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ساری مچ کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر عائد ہوتی ہے، اور اکرم شیخ نے پھر اپنے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو رونما فنڈنگ کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے، لیکن سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے کے لیے بہت شکریہ شہباز احمد، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ راولپنڈی کی احتساب عدالتوں کے دونوں ججز صاحبان شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنس کی مکمل سماعت سے قبل ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ نئے ججز کی تقرری تک شریف فیملی کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ راولپنڈی نیب کورٹس کے جج خالد محمود رانجھا اور راجہ اخلاق اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے، مزید جانیں گے ہمارے نمائندے محمد اویس سے۔ محمد اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ محمد اویس سے مزید بات کریں گے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ راولپنڈی کی احتساب عدالتوں کے دونوں جج صاحبان شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنس کی مکمل سماعت سے قبل ہی ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور نئے ججز کی تقرری تک شریف فیملی کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ راولپنڈی نیب کورٹس کے جج خالد محمود رانجھا اور راجہ اخلاق اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنس دائر کرنے کے معاملے سے متعلق راولپنڈی نیب کورٹس میں 2 ججز تعینات ہیں جو اگلے ماہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے محمد اویس سے۔ اب محمد اویس بتائے گا اس حوالے سے مزید کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ یہ بالکل سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان پر سپریم کورٹ کی جانب سے بنائے جانے والے 4 ریفرنس کی احتساب راولپنڈی عدالت کے ججز مکمل پر سماعت نہیں کر پائیں گے کہ ان کی مدت مدت ختم ہو جائے گی۔ شریف خاندان پر ریفرنس کے حوالے سے امکان ہے 20 سے 25 اگست کے درمیان احتساب عدالت میں دائر کیے جائیں گے، مگر احتساب عدالت 3 کے جج راجہ اخلاق حسین مدت ملازمت مکمل 30 ستمبر کو ریٹائر کے جج خالد محمود 4 اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے۔ ان کی جگہ نئے ججز کی تعیناتی 4 سے 5 اکتوبر تک ہو جائے گی، جو نواز شریف خاندان پر دائر ریفرنس کا مکمل طور پر فیصلہ سنا سکیں گے۔ اس لیے موجودہ دونوں ججز پر جو فرد جرم عائد کیے جانے کی حد تک ہی ریفرنس کو دیکھ سکیں گے، مگر فیصلہ سننے تک ان کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہوگی۔ عدالت نمبر 1 کے لیے طاہر ایوب نیب پروسیکیوٹر، جبکہ عدالت نمبر 3 کے لیے وقار عباسی نیب پروسیکیوٹر ہوں گے۔ تاہم ان ریفرنسز کے لیے نئے خصوصی پروسیکیوٹر کی تعینات کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुकाम तब्दील। गवर्नमेंट हाउस मरी की बजाय अब मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की अहम बैठक चांगला गली में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हो रही है। मुशावरती इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक आज वफाकी काबीना के लिए नामों को खत्मी शक्ल दी जाएगी। जावेद बलोच नुमाइंदा न्यूज़ हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जावेद, बताइएगा कौन कौन से नाम फाइनल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं डुंगा गली में, जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर ये इजलास, मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है। पहले मरले में वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी यहाँ पहुँचे हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ भी इस इजलास में, मुशावरती इजलास में शरीक होंगी। ये मुलाकात शुरू हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो है वो सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक हो जाएंगे। इस इजलास का एजेंडा ये है कि एक तो काबीना के नाम फाइनल करने हैं, दूसरा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक फैसला किया जाना है कि क्या आया उन्हें वज़ारत उज़्मा के लिए मरकज़ में लाया जाए या ना लाया जाए। ये इस पर मुशावरत होगी, जिसके बाद काबीना के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस वक्त वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत ख़जाना की ये तीन अहम वज़ारतें हैं जिनके मुतल्लिक डेडलॉक बरकरार है। इस पर फैसले किए जाने हैं कि किसको कौन सी वज़ारत दी जाएगी और कौन सूटेबल होगा किस वज़ारत के लिए। चूँकि अभी तक वज़ारत उज़्मा के फाइनल कैंडिडेट का जो है वो फैसला नहीं हो सका। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कंटिन्यू करना है या 45 रोज़ के बाद जो है वो शहबाज शरीफ आ जाएंगे, अभी ये फैसला होना बाकी है। जब ये फैसला हो जाएगा तो उसके बाद काबीना के जो है नामों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। बताया जा रहा है कि काबीना की हलफबर्दारी भी जो है वो कल जुमा के रोज़ मुतवक्किल है। आज ये तमाम नाम फाइनल कर ली जाएंगे, जिसके बाद काबीना हलफ उठाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने 9 मुंतखब वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। मुंतखब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। इस मौके पर कौमी तराना भी बजाया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म ने पाक फौज के अफसरान और जवानों से मुसाफा किया और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की लाहौर आमद को टार्जन की वापसी बनाने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पर भरपूर पावर शो होगा। काफिले की सूरत में शहर इक़्तिदार छोड़ेंगे। रास्ते में जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। तैयारियों के लिए हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं को टास्क दे दिया गया है। नहली के बाद नवाज शरीफ की लाहौर आमद। नून लीग का भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा करने का फैसला। जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। मतवाले बेताब तो लीगी रहनुमा भी पुरजोश। मुस्लिम लीग नून के जराये का कहना है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इतवार को बड़े काफिले की सूरत में इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे। मरी में होने वाले मुशावरती इजलास में ये फैसला भी किया गया कि नवाज शरीफ शहर इक़्तिदार से बजरिया सड़क अपने आबाई शहर रवाना होंगे। इस्लामाबाद से चौधरी निसार, तारिक फजल चौधरी और दीगर रहनुमा इन्हें रवाना करेंगे। नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा जुलूस भी होगा। सबसे बड़ा इस्तकबाल लाहौर पहुंचने पर किया जाएगा। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को इस्तकबालिया कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 2018 के आम इंतखाबात के लिए 70,000 मोबाइल फोन खरीदने का फैसला किया। हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मोबाइल फोन मुहैया किया जाएगा, जो इंतखाबी नताइज बजरिया फोन अपने रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा।
सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात लाने में नाकाम, तो इलेक्शन कमीशन ने अगले इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का 2018 के आम इंतखाबात के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम और रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 70,000 मोबाइल फोन खरीदने का फैसला। मंसूबे पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। जराये के मुताबिक मोबाइल फोन में RMS और RTS सॉफ्टवेयर मुहैया किए जाएंगे। ताहम RMS के इस्तेमाल का फैसला इंतखाबी इस्लाहात बिल की मंजूरी से मशरूत होगा। मंसूबे के तहत हर पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मोबाइल फोन मुहैया किया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोबाइल फोन से इंतखाबी नताज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और मरकजी इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकेगा। लाहौर गैरिजन सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने मिलिट्री यूनिट्स का दौरा किया। तालिब इल्मों ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और लाहौर गैरिजन तालिब इल्मों ने फौजी सिपाहियों और अफसरान से गैर रस्मी मुलाकात भी की। इसकी मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। तलबा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और इफ़त हसन रिजवी इसकी हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। इफ़त, बताइएगा। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें तालिब इल्मों को मुख्तलिफ मिलिट्री यूनिट्स का दौरा कराया जाता है। इसी हवाले से सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने लाहौर गैरिजन का आज दौरा किया है, जहाँ पे उन्होंने फौजी सिपाहियों और अफसरान से गैर रस्मी मुलाकात भी की है, जबकि फायरिंग रेंज का भी मुआयना किया है। इस कबल हैवी इंडस्ट्री सेक्सला पे भी कुछ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को मुआयने के लिए ले जाया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका इफ़त, आपने तफसीलात से आगाह किया। कराची की बलोच कॉलोनी में मकान से 14 साल लड़के की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। मकतूल शाहिद के गले पर निशानात मौजूद हैं। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या बलोच कॉलोनी के जुनेजो टाउन में पेश आया है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब अली, बताएगा इस वाक़े से मुतल्लिक। जी, मैं इस वक्त जिना अस्पताल के मुर्दा खाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ अंदर पोस्टमार्टम कानूनी कार्रवाई, ज़ाब्ते की कार्रवाई चल रही है। उस बच्चे की जिसकी लाश घर से बरामद हुई है, बलोच कॉलोनी के इलाके में तशद्दुद के निशानात भी मौजूद है। ताहम वजह मौत के तयन के लिए जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके वालिद जो कि रक्षों की चौकीदारी करते हैं, घर के अंदर ये 3 ही अफराद रहते हैं, यानी बाप बेटा और उनकी बेटी। बाप जो है वो रक्षों की चौकीदारी करते हैं। उनका कहना है कि सुबह जब बच्चा उनके पास नहीं पहुंचा, लेट हो गया, वो घर गए तो उन्होंने लाश देखी। बाकी तफसीलात इसके वालिद से, गुलाम नबी से इस हवाले से जो है वो तफसीलात पता करते हैं। जी गुलाम नबी, ये बताइएगा कि असल वाकया हुआ क्या और आपको किस तरह पता लगा? मैं तेरे को बता रहा, जो वो लेट हुआ था तो मैंने बोला यार ये सोया होगा। जब घर गया था तो ये सोया हुआ था, कमीज भी नहीं पहना हुआ था, आवाज भी मारा। मैं समझा सोया हुआ है, ये तो मरा पड़ा हुआ था। तो आवाज दिया तो जब गया तो इसका मुंह से इधर से हल्का सा खून भी आया हुआ था। तो इधर उधर चारपाइयों के नीचे मैंने बोला बच्ची को भी मारा हुआ है। जब पेटियों को देखे वो पेटी तोड़ा हुआ था, समझ गया तो देख लिया वो बच्ची नहीं है और इसके गला दबाया हुआ था, मारा पड़ा हुआ था। हमारे साथ गुलाम नबी मौजूद थे, उस बच्चे के वालिद हैं जो कम उम्री में जिसको कत्ल कर दिया गया। इनका ये कहना है कि ये बच्चा जो शाहिद है, ये करीब 1 साल का था कि इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। जब ये घर आए तो घर में इन्होंने बच्चे की लाश देखी, जबकि इनकी बच्ची जो है वो लड़की जो है वो लापता है। इस वक्त इनका कहना है कि फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वारदात क्या है, जबकि पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू की। रजब अली आपका। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली की रुकन आयशा गुलालई को ताहयात नाअहल करार देने के लिए शहरी ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से रुजू कर लिया है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि आयशा गुलालई अपने इल्जामात को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। अहम खबर है, आयशा गुलालई ने इमरान खान के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की कोई सबूत नहीं दिया, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से आयशा गुलालई को नाअहल करार देने की इस्तदा। शहरी ने लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि रुकने कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, बगैर सबूत इल्जाम आयद करने के बायस वो सादिक और अमीन नहीं रही, लिहाजा इन्हें ताहयात नाअहल करार दिया जाए। आयशा गुलालई के इल्जामात के बाद फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन और मरकजी डेप्टी स्पीकर सेक्रेटरी जनरल फारूक हबीब इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।
اس طریقے سے کیونکہ ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک پورا تحریک کا سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جس کے لیے ہمیں اس کو ویک اپ کال چاہیے تھی ہمارے نیشن کو، اور ان کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ جب بھی ہم ان کے ساتھ ملے ہیں یا میری جب بھی ملاقات ہوئی ہے، کبھی بھی انہوں نے میری طرف یا خواتین کی طرف میں نے دیکھا ہے کہ وہ چہرے کی طرف نگاہ نہیں کرتے، اور کبھی بھی ایسے فیل نہیں ہوا، بلکہ ہمیں کیونکہ ہم ورک کرتے ہیں ان کے لیے ایک لیڈر کے لیے، تو ہمیں ایک تشنگی رہ جاتی ہے کہ آیا وہ ہمیں اگلی دفعہ پہچان بھی پائیں گے یا نہیں۔ اور اسی طرح کی تصاویر جو ابھی عائشہ گلالہ کے ساتھ میٹنگ میں نکلی تھی، ان میں کسی بھی تصویر میں وہ چہرے پر نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ ہر بڑی عمر کی اور چھوٹی اور جوان ہر قسم کی جو ایج گروپ کی خواتین ہیں ان کو صرف اپنا اس پریس کانفرنس سے متعلق آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ابھی اور آپ کو بتائیں کہ آرٹیکل 62 اور 63 پر مکمل طور پر پورا اترنے والا شخص ڈھونڈنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ نیو نیوز نے پشاور کے چترالی بازار سے ایسے شخص کو ڈھونڈ نکالا جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے اور عوامی خدمت کے لیے تیار بھی۔ پشاور سے محمد نعیم کی رپورٹ۔ وزیراعظم کی نااہلی اور مختلف حلقوں کی جانب سے آئین میں سے دفعہ 62 اور 63 کی شرط ختم کروانے کے لیے سرگرم ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی صادق اور امین نہیں رہا، لیکن پشاور میں نیو نیوز نے ایسا شخص کھوج لیا جو صادق امین ہے۔ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور کوئی بڑے ادھر میں انشاءاللہ کو پورا اتریں گے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو گئے جو خدمت ڈالیں۔ صادق امین نہ صرف نام کا صادق امین ہے بلکہ کردار کا بھی صادق اور امین ہے۔ اگر سب صادق امین ہو جائیں تو میں آپ کو یہ بات گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ پاکستان جو ہے صفحے اول کا ملک ہوگا۔ صادق امین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کردار کے لحاظ سے عہدوں پر بھی صادق اور امین لوگ آ جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ محمد نعیم، نیو نیوز، پشاور۔ سیاست کے رنگ دیکھیں تو لگتا ہے سب کے تین چہرے ہیں، لیکن چین میں پل 3D ہے اور دریائے زرد پر بنے پل کو دیکھنے کے لیے بچے بڑے سب پہنچ رہے ہیں۔ پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال جزوی طور پر ختم کر دی۔ انسانی ہمدردی کے پیش نظر صوبے کے اسپتالوں میں ایمرجنسی سروسز کھول دی گئیں، لیکن OPDs تاحال بند ہیں جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کے مطابق مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ ینگ ڈاکٹرز کے محکمہ صحت سے مذاکرات کامیاب لیکن ڈٹائی پھر بھی برقرار۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی کھول دی گئی لیکن OPDs میں کام نہ کرنے کا اعلان۔ لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور ملتان سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں ینگ ڈاکٹرز نے ایمرجنسیز میں کام شروع کر دیا لیکن OPDs بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق انسانی ہمدردی کے پیش نظر ایمرجنسی سروسز کھولی گئیں۔ محکمہ صحت کے حکام سے آج دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ سروسز اسپتال لاہور میں مریضوں نے عملے پر رشوت لینے کا الزام لگا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ٹیسٹ کی رپورٹ 2000 روپے لیے جا رہے ہیں جبکہ مریضوں کو 24 سے 36 گھنٹے بغیر کھلائے پلائے آپریشن تھیٹر میں رکھا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، انہیں بغیر آپریشن واپس بھی بھیجا جا رہا ہے۔ بات کریں گے ہماری نمائندہ روبا عروج سے۔ روبا عروج، بتائے گا کیا کہتے ہیں مریض؟ جی بالکل، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال آج تیسرے روز بھی جاری ہے، تاہم جو وہ ایک جزوی طور پر ہڑتال ختم کی گئی ہے، ایمرجنسیز کو کھول دیا گیا ہے کیونکہ ینگ ڈاکٹرز کے مطابق انہوں نے انسانی ہمدردی کے تحت یہ ایمرجنسیز کھولی ہیں، لیکن دوسری جانب محکمہ صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جزوی طور پر مذاکرات جو وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہڑتال جو لڑائی ہے یہ ینگ ڈاکٹرز اور محکمہ صحت کے درمیان ہے، لیکن اس کا جو خمیازہ وہ بھگتنا پڑ رہا ہے مریضوں کو جو کہ ہسپتالوں کے باہر
न्यूरोपैथीज में और जो एडमिट लोग हैं और वो लोग जो कि दूर दराज दूसरे शहरों से यहाँ पर अस्पतालों में चेक कराने के लिए आते हैं। सर्विसेज अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अभी भी मेरे साथ कुछ मरीज ऐसे मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम हमें मुश्ताइल भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि परेशानी ये है कि अंदर उनके मरीज मौजूद हैं, उनको चेक नहीं किया जा रहा, किसी की रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही, तो किसी को अद्वियात की जो डिटेल्स है वो नहीं फ्राहम की जा रही, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आप बताइएगा, अभी आप जैसा कि बता रहे थे कि आपके मरीज अंदर हैं, बताइएगा क्या मुश्किल पेश आ रही है? ये हम तकरीबन 4 दिन से हमारा मरीज हॉस्पिटल एडमिट है इधर सर्विसेज हॉस्पिटल में, ठीक है, लेकिन हमें ना मेडिकल रिपोर्ट इसकी चाहिए। तकरीबन ये कह रहे हैं कि ये आपको कल मिलेगी, आज मिलेगी, आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल रही। हमारे साथ जो पुलिस का मुलाजम जिला शेखपुरा से हमारे वो 7 बंदा आया है, ठीक है, अंदर जाके वो आपस में सब एक मिले हुए हैं, डॉक्टर भी मिले हुए हैं, ये पुलिस वाले भी। ASI जो है कह रहा है कि जी हमें पहले हमारे साथ जी मुखालिफ पार्टी से हमारा मुकमका कर लें, उन्होंने बंदे इधर हमारे पास भेजे हुए हैं, इन्होंने आपस में SHO सब ने कह रहे हैं कि जी हमें पैसे लगाएं, लेकिन ये गलत बात है। अभी हमने मेडिकल रिपोर्ट अंदर से लेनी है जो कि हमें नहीं मिल रही। आज 4 दिन से हम जलील हो रहे हैं, वो मुखालिफ पार्टी ने हमारे पे। अच्छा, हड़ताल की वजह से मरीजों को क्या मुश्किलात का सामना है, आप बताइएगा। आपके मरीज अंदर मौजूद हैं, मसले क्या आ रहे हैं अस्पताल में? जी देखें कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, झगड़ा हुआ है, जो मुखालिफ पार्टी है उन्होंने F6 का F1 का नतीजा ले लिया है। बहुत शुक्रिया रूबारूज, आप अपडेट कर। जो मरीजों के यहाँ पर लवाहिकीन मौजूद हैं, जो उनकी फैमिली रिश्तेदार हैं, उन्होंने यहाँ पर अस्पताल पर अमले पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया है। लाहौर के शेख सैयद अस्पताल में चेयरमैन ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड का पैरामेडिकल स्टाफ के नायब सदर पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया। नेओ न्यूज़ ने इस वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली है और फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह सिक्योरिटी गार्ड पैरामेडिकल स्टाफ के नायब सदर करीमुद्दीन पर तशद्दुद कर रहा है। करीमुद्दीन ने भागकर अपनी जान बचाई। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ नवीद भी हमारे साथ मौजूद है। मियाँ नवीद बताएगा, फुटेज भी सामने देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना की गई, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, आज कई रोज गुजर चुके हैं इस वाक़या में, और इस वाक़या में इस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह जो चेयरमैन ऑफिस का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नायब सदर जो है पैरामेडिकल स्टाफ उस पर तशद्दुद कर रहा है। इस हवाले से मैं बता दूं कि 15 रोज से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल इस सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जिसके बाद 15 रोज से हड़ताल और तमाम खमियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि चेयरमैन ऑफिस की जानिब से जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनकी तमाम तनख्वाहें रोक दी गई हैं, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन भी शदीद परेशान है। इस हवाले से उन्होंने महकमा सेहत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ नवीद, आपने हमें अपडेट किया। मरी में मुस्लिम लीग नून का इजलास शुरू हो गया। नवाज शरीफ चांगला गली की रिहाइशगाह से डूंगा गली शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मशावरती इजलास शुरू हो गया है। इजलास में वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ शरीक हैं। आज काबीना के नामों को खत्मी शक्ल दी जाएगी और तमाम वजारतों पर, खासतौर पर वजारत खजाना, वजारत दाखिला के हवाले से अभी तक सूरत हाल जो है कुछ नाम फाइनल नहीं हो सके हैं। तमाम काबीना के नाम आज इजलास में फाइनल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस इजलास में शरीक हैं। नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह छांगला गली से डूंगा गली शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर मशावरती इजलास इत्तलात हैं कि शुरू हो गया है। अब शहर इक़्तिदार के फैसले होंगे। वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी भी पहुँच गए हैं। वज़ीर दाखिला, खारजा और वज़ीर खजाना कौन होगा, आज फिर होगी लीगी रहनुमाओं की अहम मशावरत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते के पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस सवाल से कुछ मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात। इस मुलाकात की मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ इफ़त हसन रिजवी। जी इफ़त, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। साथ ही पाक अफगान बॉर्डर की सिक्योरिटी सूरत हाल भी जो है वो ज़ेर गौर लाई गई है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग और खित्ते के पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। जी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
मज़ीद अहम खबरें होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। I see you, peekaboo. वेलकम बैक। शेख रशीद अहमद ने कौमी असेंबली में तकरीर का हिस्सा नशर न करने और मुबैना हमले के खिलाफ कौमी असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। तहरीक इस्तेहकाक में आबिद शेर अली और कैप्टन सख्तर को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असद सुहेब से। असद सुहेब बताइएगा, हमें अपडेट कीजिएगा। मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाया है, जो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के दिन उनकी तकरीर का एक हिस्सा जो है वो टीवी चैनल शेयर नहीं किया था, सरकारी टीवी चैनल ने, उस पर भी उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई है। जबकि उसके बाद जब वो कौमी असेंबली से बाहर निकल रहे थे तो पार्किंग की तरफ जाते हुए उन पर हमला किया गया। शेख रशीद अहमद ने तहरीक इस्तेहकाक में ये भी लिखा है कि आबिद शेर अली और कैप्टन सख्तर के इमाम पर जो है वो हमला किया गया है, उनके जो इस्तेहकाक है वो मजरूह किया गया है ऐसे रुकन कौमी असेंबली, लिहाजा इस पर जो है वो स्पीकर कार्रवाई करें। जी बहुत शुक्रिया असद सुहेब, आपने हमें अपडेट किया। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हुर्रियत रहनुमाओं पर मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कश्मीर में पुरअमन तहरीक के साथ जो हो रहा है उस पर नजर है। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान इस्लामाबाद में बरतानी पार्लियामेंट के वक्त के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर में बिगड़ रही है, वहाँ इस वक्त पकड़ धकड़ जारी है, सियासी बुनियादों के ऊपर इंतकाम लिया जा रहा है और लोगों को कैद किया जा रहा है। और ये विच हंट में इसे कहूँगा, ये खुद हिंदुस्तानी हुकूमत ने शुरू की है, मरकज़ी हिंदुस्तानी हुकूमत ने शुरू की है और इसमें काबिज़ अफवाज को हुक्म दिया है कि ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा गिरफ्तार किए जाएँ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत इंतहा पर पहुंच गई। 3 दिन में शहदा की तादाद 6 हो गई है। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। शुपैया में हुर्रियत पसंद और भारतीय फौज के दरमियान मुकाबले में मेजर समेत 2 भारतीय फौजी भी मारे गए। मकबूजा कश्मीर में भारत की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। काबिज भारतीय फोर्सेस ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान कुलगाम में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। शहदा की शनाख्त आकिब अहमद और सुहेल अहमद से की गई है। शहादतों के खिलाफ मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। शुपैया में हुर्रियत पसंदों और भारतीय फौज के दरमियान मुकाबले में मेजर समेत 2 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल जबकि 2 जख्मी हो गए। मुल्तान में कैदियों और पुलिस वालों में मैच पड़ गया। सेंट्रल जेल में कैदियों और पुलिस एहलकारों के माबैन जश्न आज़ादी वॉल बॉल टूर्नामेंट खेला गया। कैदियों और पुलिस एहलकारों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ से। इमरान अशरफ बताएगा इस मैच से मुताबिक। 14 अगस्त का महीना शुरू हुआ है तो इसमें जो सेंट्रल जेल के कैदी हैं उनको भी आज़ादी की जो खुशियां हैं उसे रोशनास करवाने के लिए और 14 अगस्त की अहमियत को उजागर करने के लिए एक आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से आज़ादी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कैदियों ने जो है वो दोस्ताना मैच जो है वो पुलिस वालों के साथ खेला। इसके अलावा वहाँ पे जो है वो ढोल वालों को बुलाया गया था। बाकायदा वहाँ पे पुलिस वालों ने और कैदियों ने मिलकर रक्स किया और इस आज़ादी की खुशियों को जो है सेलिब्रेट किया। और जितने भी पुलिस एहलकार थे वो फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जश्न आज़ादी के टूर्नामेंट में जो है वो कैदियों के साथ मिलकर भंगड़े डाले जा रहे हैं। तो पुलिस का ये अच्छा साइन है कि जितने भी कैदी है वो उनको 14 अगस्त के हवाले से जो आज़ादी की खुशी है उससे रोशनास करवाया जा रहा है, उसकी अहमियत को उजागर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इमरान अरशद मुल्तान से आप हमें अपडेट कर रहे थे, जहां पर कैदियों और पुलिस वालों के बीच में ये मैच के मनासिर देखे जा सकते हैं। सेंट्रल जेल में कैदियों और पुलिस एहलकारों के माबैन जश्न आज़ादी वॉल बॉल टूर्नामेंट खेला गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी 70वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। जगह जगह सब्ज़ लाली परचमों की बहार है। यौम आज़ादी की तैयारियों से मुतालिक मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। मोना बताएगा कहां कहां तैयारियां जारी हैं?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान की आज़ादी का महीना अगस्त जैसा कि शुरू हो चुका है और पाकिस्तानियों का जोश भी देखने लायक है। मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मार्केटों में स्टॉल्स लग गए हैं जिनमें सब्ज़ हिलाली परचम, बच्चों के लिए सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों के मलबूसात, बैजेस, टोपियाँ, हैट, इसके अलावा छोटी बच्चियों के लिए और बड़ी खवातीन के लिए जो है चूड़ियाँ और दीगर इसी तरह की एसेसरीज मौजूद है। इस मार्केट में खरीदारों का बेइंतहा रश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस बार जश्न आज़ादी किस अंदाज से मना रहे हैं और क्या क्या उन्होंने तैयारी कर ली है। जी बताइएगा, आपने क्या तैयारी की है? जी हम आज बाज़ार में आए हैं तो माशाल्लाह बड़ा जोश व खरोश नज़र आ रहा है, तो हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें मार्केट में आई हुई हैं नई नई, हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं होती थी, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी शुक्रिया मोना सिद्दीकी, आपने हमें तैयारियों से मुताल्लिक अपडेट किया। न्यूज़ बुलेटिन अब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़।